Okay. Good evening, everyone. Actually, good afternoon. Good afternoon, everyone. So I think we are going to start the session in a while. We've just checked the audio and the video. Hello. Hello. Okay. Paris ji, so we will start in a while. Abhi participants added. Hello, sir. Welcome and good afternoon. Hello. And welcome Good and thank you so afternoon. much for accepting our invite for delivering this lecture. हम बस we will be starting in a while. अभी participants add हो रहे हैं. So 2-3 minutes हम wait करते हैं और जैसे ही like then we will start. Okay ठीक sir. है Thank ठीक you है so much. अरे मैं एक बार आपको slides देख लेती हूँ because I'll be presenting. Please check it. Is my screen visible? Yes, it is visible. Okay. Thank you so much. You can put it in the full screen mode. I think that will better be expedient. कर दो ऑन कर ना वो खुद का ही तो ऑप्शन में लगा Is it fine now? Okay, so यस stop this. Good afternoon, everyone. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, everyone. I would like to welcome थोड़ा our करेगा बस principal, Indraprastha College for Women, Professor Babli Moitra Saraf, Coordinator, Center for Art Studies, Dr. Anindita Roy Saha, and our esteemed speaker for today's session, Jal Purush, the Waterman of India, Mr. Rajendra Singh. All the faculty members present here today and the participants of this course. Thank you so much, everyone. As we know that today we are entering the second week of this online certificate program on ecology, environment, and sustainability. The theme of this week is natural resource management and sustainable energy. So today we are starting this session, the theme with the special lecture by our honorable guest, Mr. Rajin Singh.
Now I would request our principal ma'am to address the meeting and welcome our speaker. Over to you, ma'am. Thank you, Neha. Namaskar, Mr. Rajendra Singh. Thank you for being here and welcome to the college. I'm very happy to share that we have, in the last decade almost, been able to create a culture here which looks at sustainability, which looks at diversity, which looks at the ways in which we can intervene to make our lives compatible with the concerns that have been raised not only by ourselves in our small worlds, but also at the level of the globe. In that, water has become a very, very important asset. We know it, you know it much more than all of us. So in my memory remains the story of South Africa, where when Cape Town ran out of water, they considered dragging an iceberg from the North Pole to make it to see whether the water supply could be replenished by that. It sounds like a story, but it could well happen to anybody, into any country of the world, given the state of the water resources. I am very happy also to share with you, sir, that in our undergraduate research grant and also in our Center for Earth Studies, under the aegis of which this certificate program has been arranged, we have actually awarded grants to our students to look at water tables or look at the water resources in nearby areas. And one of our teams is working on the water resources in the GTB Nagar area, which is Kingsway Camp as we know it, Guru Tegh Bahadur Nagar, which is almost adjacent to our college and to our locality and the campus also. So it's something that we have engaged with. We have for long been on the banks of the Jamuna, and we've always been told that, you know, we have a high water table and we don't need to have certain kinds of harvesting systems. But be that as it may, in the previous years, we have still built about 8 water harvesting tanks, or pits, as they are called. The technical term escapes me, probably pits, water harvesting pits, which collect the rainwater on the campus. Also, we have a very old colonial well, which supplies water to us still. It has a water table not as high as we would like it to be, or the Jal Board assesses it to be, but it suffices for our purposes. However, we cannot exhaust these resources, as all of us know, and we have to look at the concept of both conservation and replenishment. In the whole debate of conservation all over the country and all over the globe, who could be more knowledgeable for us than our special speaker today, Mr. Rajendra Singh? So we're very, very warm welcome to you, sir, and I express gratitude to you for sparing time to be with us on this course. Thank you very much. I have been given the honor, which I accepted with humility, of introducing Mr. Rajendra Singh, and I will proceed to do that now. Thank you very much. Mr. Rajendra Singh, popularly known as Jal Purush or Waterman of India, is an inspirational icon who has changed the life of people in over 1,000 villages of Aravalli Hills. He is the winner of the Stockholm Water Prize 2015, an award known as the Nobel Prize for Water, and the Raymond Magsaysay Award 2001 for community leadership. In 2008, The Guardian named him amongst its list of 50 people who could save this planet. Excuse me. In 2002, Rajendra Singh ji started a national water march, Rashtriya Jal Yatra, covering northern and southern states, including 144 river basins.
During this yatra, he organized 5 national water conferences in different parts of the country. He organizes Pani Panchayat or water parliament in remote villages of Rajasthan. Rajendra Singh's efforts have been instrumental in educating people about the importance of conservation of water, eradicated the scarcity of water in the rural areas of Rajasthan, and have inspired people to voluntarily build johars, which is the rainwater storage tanks, so that the women don't have to travel to distant places to fetch water, fuel, wood, and fodder. Sri Rajendra Singh's organization, which is called Tarun Bharat Singh, TBS, is working for the empowerment of communities using the Gandhian approach of Gram Swarajya, which is the village self-rule. The unique part of TBS's modus operandi for development is to make the community self-reliant. It seeks to bring dignity and prosperity to the life of destitute sections of the nation through sustainable development measures. It also aims for the holistic development of men, women, and children, regardless of economic situation, caste, or religion. TBS promotes the community-driven, decentralized management of the natural resources. Mr. Rajendra Singh is also heading a national network of organizations working on issues. It's called the Rashtriya Jal Biradari. This network is working for the restoration of all mighty and small rivers of the country. As we can see from his introduction itself, from his CV, as it were called, it's much more than that, of course, it's his whole life. The whole emphasis is on the micro, the management at the community level, the management by ourselves, so that this network that we can create with indigenous knowledge, including indigenous knowledge, and there is a lot of indigenous knowledge which is still untapped because the people who claim to know better can impose their systems on certain kinds of land which are not compatible with those systems. This one-size-fits-all kind of approach has been the bane of many kinds of existence level projects, community level requirements. And so he has done, as we can see inspirationally, he has done what is the need of the hour, which is to galvanize smaller communities into looking at their own layout of their land, their terrain, their water resources, and digging into their indigenous knowledge, into their expertise, skills, to create a sustainable water source. So with these words, which are absolutely inadequate to match Sri Rajendra Singh's potential and work, in all humility, sir, I welcome you to address the audience. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Thank you so much, ma'am. प्रिंसिपल साहब, शिक्षकों, विद्यार्थियों, आपके कॉलेज ने हमारे कॉमन फ्यूचर को बेहतर बनाने की चिंता की है, इसीलिए इकोलॉजी और सस्टेनेबिलिटी, इन सब मुद्दों पर एक नया चिंतन शुरू किया है। इसलिए सबसे पहले तो मैं प्रिंसिपल को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूं कि आपके कॉलेज ने एक अच्छी शुरुआत की है। मैं पहले अभी दुनिया में क्या हो रहा है 2-3 मिनट में वो बताने की कोशिश करता हूं और फिर अपने प्रेजेंटेशन पे आता हूं। पिछले 5 वर्षों से मैं अफ्रीका और सेंट्रल वेस्टर्न एशिया के देशों में काम कर रहा हूं, उनको मदद कर रहा हूं, उनकी यात्रा। लेकिन मैंने देखा कि वो देश बेपानी होकर उजड़कर यूरोप के देशों में जा रहे हैं। यूरोप में अभी भी पीने का पानी और उनकी जरूरत को पूरा करने के लिए इंडस्ट्री वगैरह के लिए बहुत है,
जबकि उनके पास जो एक्सप्लॉयटेशन की टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग थी वो हमसे करीब 150 साल पहले आ गई थी। अंडरग्राउंड को एक्सप्लॉइट करना वो सब उनके पास था, लेकिन उन्होंने अपने अंडरग्राउंड एक्यूफर्स को इंटैक्ट करके रखा। जो भी कुछ वर्षा का जल था उसको ऐसे मैनेज किया कि उनकी ज़रूरतें पूरी हो सके और वहाँ की बायोडाइवर्सिटी सब कंजर्व हो सके और उनका फ्यूचर भी ठीक हो सके। जो भारत देश अपने भगवान को अच्छे से पहचानता था, भगवान का मतलब क्या है? भगवान का मतलब है भय से भूमि, गैसे गगन, वैसे वायु, ऐसे अग्नि और नैसे नीर। ये जो पंच महाभूत हैं वो ही भारत के भगवान थे। वैदिक काल तक इस देश में केवल और केवल प्रकृति की पूजा होती थी और पंच महाभूतों को ही भगवान माना जाता था। हम भारतीय आस्था को देखें, जो भारतीय ज्ञानतंत्र है जिसको बेंजी इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम कह रही थी, वो जो इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम है उसमें नेचर और ह्यूमैनिटी का इक्वल नरिशमेंट था। नेचर और ह्यूमन दोनों इक्वल नरिश होते थे। हमारी मॉडर्न एजुकेशन ने नेचर का नरिशमेंट छोड़ दिया और नेचर का एक्सट्रैक्शन, मैक्सिमम यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स के नाम पर नेचर को एक्सप्लॉइट करना शुरू किया। उसमें से पॉल्यूशन हो गया और फिर जो मैनेजमेंट पढ़ने वाले लोग हैं उन्होंने कॉमन प्रॉपर्टी को कैसे एनक्रोच करना, रिवर को, सिंध को, फॉरेस्ट को। तो हमारी मॉडर्न एजुकेशन में तीन बड़ी खामियां रही हैं। एक तो टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग हमारी केवल एक्सट्रैक्टिव है, एक्सप्लॉयटेटिव है, एक्सट्रैक्शन करने वाली है। और जो हमारी मैनेजमेंट की एजुकेशन है वो लोगों को मैनेज करना, कंट्रोल करना, कॉमन प्रॉपर्टी को कंट्रोल करना, इसका मैनेजमेंट सिखाती है। और जो एक तरह से हमारी सिविल साइंस, सिविल इंजीनियरिंग और सिविल साइंस है, सिविल सोसाइटी की, वो ये हो गया कि पहले गुरुकुल में जो एजुकेशन थी वो मेहनत करके उस मेहनत से जितना उत्पादन होता था उससे वो अपनी पढ़ाई भी करते थे और अपना जीवन भी जीते थे। हमारी अब इस मॉडर्न एजुकेशन में जिस आदमी ने पीएचडी कर ली वो पीएचडी करने के बाद खेत में मेहनत नहीं करता, वो इस नेचर के साथ वॉलंटरीली लेबर को छोटा मानता है, लेबर के काम को वो मानता ही छोटा है। तो पीएचडी करने के बाद हमारे टीचर कहने लगते हैं, अरे तुमने पीएचडी किया है, तुम अब खेत में काम करते हो। तो पीएचडी ने इस नेचर के साथ जो एक ह्यूमन रिलेशनशिप थी उसको दूर कर दिया। तो ये जो तीन बड़े चैलेंजेस हैं हमारी आधुनिक शिक्षा के, इनको अब थोड़ा नए सिरे से कोविड-19 के बाद कुछ रियल प्रैक्टिशनर और एजुकेशनिस्ट सोचने लगे हैं कि ये जो कोविड है वो कोरोना 1 और ये कोरोना 2 ये लेबोरेटरी से निकला हो या मार्केट से निकला हो। चाइना कहता है मार्केट से निकला है, हमारी लेबोरेटरी से नहीं निकला। अमेरिका कहता है कि नहीं 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 नहीं, ये तो इनकी लैब से निकला है क्योंकि ये वायरल वॉर शुरू करना चाहते थे। दोस्तों, मैं इस डिबेट में नहीं पढ़ना चाहता। निकला तो चाइना से, क्योंकि चाइना के अंदर ये ग्रीडीनेस थी कि वो इकोनॉमिक लीडर बन जाए दुनिया का। तो जब हमारे अंदर एक इकोनॉमिक लीडर बनने की चाह होती है तब हम इकोनॉमिक प्रॉफिट के कंपटीशन में
शामिल होते हैं। हमारे सामने एक कंपटीशन होता है, बड़ा कंपटीशन होता है, तो हमारा सारी एनर्जी उस इकोनॉमिक प्रॉफिट कंपटीशन में लग जाती है, और फिर हम इस नेचर में जो हमारी हैप्पीनेस है, जो हमारी लाइफ की एंजॉयमेंट है, जो हमारी लाइफ में जीने का जो आनंद है, जीने के लिए करने का जो वॉलंटरी एक्शन का जो हमारे जीवन का आनंद है, वो खो जाता है। दोस्तों, चाइना के मन में ये बहुत है कि वो दुनिया का इकोनॉमिक लीडर बने, इसलिए उसने अपना जो डेवलपमेंट किया, उस डेवलपमेंट के फ्लो को इतना फास्ट किया कि वो जल्दी से जल्दी अपनी जीडीपी ग्रोथ को बढ़ा के नेचर के बारे में कभी देखा नहीं और सत्यानाश किया, और उसका परिणाम है ये कोरोना 2 और कोरोना 1। 2002 में कोरोना 1 आया। तो ये जो इस नेचर की एंगरनेस है, कोरोना जो है वो नेचर की एंगरनेस है, नेचर का गुस्सा है, क्रोध है। दोस्तों, मैं आपसे 3 बातें कहना चाहता हूं कि यदि हम इस दुनिया को और अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो फिर हमारे रिश्ते जो भारतीय आस्था में पर्यावरण रक्षा के साथ जुड़े हुए रिश्ते थे, उन रिश्तों को एक बार फिर से जानना पड़ेगा कि भारतीय आस्था पर्यावरण की रक्षा को अपने व्यवहार और संस्कार में कैसे जीती थी। और जो एक शब्द था भारत में, सनातन, सनातन धार्मिक शब्द नहीं है, बहुत ही साइंटिफिक शब्द है। और ये सनातन शब्द जो है, ये सस्टेनेबिलिटी का 100 टाइम डीप आंसर है। जो साइंस आपको सस्टेनेबिलिटी में आती है, उससे ज्यादा गहरी सेंस सनातन में आती है। सनातन का मतलब होता है जो सदैव नित्य नूतन निर्माण करता हो, जो आदि से अनंत काल तक जीवित रहता हो, कभी मरता ना हो, कभी क्षीण ना होता हो, कभी क्षय ना होता हो। जो भी कुछ सृजन हो रहा है, उस सृजन में नया सृजन करने की शक्ति जिस विकास में होती है, जिस प्रक्रिया में होती है, उसको हम सनातन कहते हैं। उसको अंग्रेजी में सस्टेनेबल कहते हैं आप लोग। तो दोस्तों, हम यदि इस दुनिया को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो हमें इसकी इकोलॉजी को, इसके इकोसिस्टम को, इसकी इको सर्विस को, और एक तरह से वो जो इको सिस्टम है, वो सिस्टम कैसे सस्टेनेबल बने, कैसे सनातन बने, उसको समझना जरूरी है। ये सनातन सस्टेनेबिलिटी अभी भी इंडिया के उन लोगों में बची है, इंडिया के उन लोगों के पास ये ज्ञान अभी भी बचा है जो इस नेचर के साथ लेने और देने के रिश्तों को बराबर रखते हैं। उन रिश्तों को, ये जो रिश्ते हमारे बिगड़े हैं, उनके बड़े कारण क्या हैं, मैं आपको प्रेजेंटेशन से शुरू करता हूं और फिर अपना जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करूंगा। भाई, प्रेजेंटेशन शुरू करो। You can start my presentation. I'm starting, sir. Is my screen? देखिए, हाँ, yes, your screen is good. थोड़ा इसको बोल्ड कर लीजिए, बड़ा कर लीजिए, जो सबको पढ़ने में, देखने में आ सके। It's visible and it's being shared. Thank you. So, ये जो मॉडर्न प्रॉब्लम है, क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग, उसको हिंदुस्तान का अनपढ़ किसान कहता है कि अब धरती को बुखार चढ़ गया है और मौसम का मिजाज बिगड़ गया है। इस धरती के चढ़ते बुखार और मौसम के बिगड़ते मिजाज को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, उसके सॉल्यूशन क्या है? उसके सॉल्यूशन है नेचर के साथ अनुकूलन करना। अंग्रेजी में कहते हैं अडेप्टेशन, क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन। जो भी नेचर है उसके साथ हम ठीक से अडेप्ट करें।
यदि हम उसके साथ ठीक से अडेप्ट करके नहीं जिएंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। नेक्स्ट यदि हम पूरी दुनिया को देखें तो इस वक्त पूरी दुनिया में थर्ड वर्ल्ड वॉर फॉर वाटर ये सिचुएशन बन गई है, क्योंकि दुनिया के जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं वो, उनकी जो एंगरनेस है वो गवर्नमेंट के साथ है, क्योंकि गवर्नमेंट की जो इग्नोरेंस है उसमें ज्यादातर फायदा कॉरपोरेट उठाता है, और कॉरपोरेट और गवर्नमेंट दोनों मिल जाते हैं। इसलिए नेचर और सिविल सोसाइटी उसके बीच की दूरी बढ़ जाती है, और इनकी लाइफ में जो सेल्फ सफिशिएंसी है वो एक तरह से अनसस्टेनेबल हो जाती है। और फिर जब हमारी लाइफ अनसस्टेनेबल होती है तब हमारे सामने सस्टेनेबिलिटी की क्राइसिस खड़ी होती है। अब यदि हम इसके कॉन्सिक्वेंस देखने की कोशिश करें तो इन्वायरमेंटलिस्ट अब इस समय गवर्नमेंट के कैपिटलाइज होने के कारण और गवर्नमेंट के कैपिटलाइज और मार्केटाइजेशन के कारण थोड़े असमंजस में हैं, और ये एक तरह का एक मिसमैच है, और उस मिसमैच के कारण पॉल्यूशन, ओवर एक्सप्लॉइटेशन और एक ये तीन प्रॉब्लम अब हमारे सामने आ गई हैं, और इन तीनों प्रॉब्लम के कारण फोर्स्ड माइग्रेशन हो रहा है। अफ्रीका से, सेंट्रल वेस्टर्न एशिया से बहुत सारे लोग यूरोप की तरफ जा रहे हैं, और जब ये यूरोप की तरफ जाते हैं तो यूरोपियन इनको क्लाइमेट रिफ्यूजी कहते हैं। सब यूरोपियन अफ्रीकन्स को अब पहले बहुत वेलकम करते थे, लेकिन अब क्लाइमेट रिफ्यूजी कहते हैं। तो बहुत तरह की टेंशन है। इंडिया में भी ये जो माइग्रेशन है केवल अभी तो गांव से शहरों की तरफ बढ़ा है। जो वॉलंटरी माइग्रेशन है वो तो बहुत बड़ा है इंडिया का, और बहुत हेल्दी है। 37 लाख लोग गए पिछले साल, लेकिन एक हेल्दी सिचुएशन में गए। वो माइग्रेशन बुरा नहीं है। वो माइग्रेशन, हम पूरी दुनिया को वासुदेव कुटुंबकम मानते हैं, हम जय जगत मानते हैं, तो हमारी ये दुनिया हमारी है। लेकिन हम जहां भी गए वहां हमने अच्छे काम किए, और वहां की सरकारों को टैक्स भी दिया, और अपने घर भी कमा के लेके आए। वहां हमारी लाइफ में थोड़ी डिसिप्लिन होता है। जब हम अपने देश आ जाते हैं तो फिर हम उन डिसिप्लिन को भूल जाते हैं। इसलिए हमें ये जो चैलेंजेस हैं, ये जो मॉडर्न चैलेंजेस हैं, इनके सॉल्यूशन एक्सप्लोर करने की जरूरत है। नेक्स्ट, इनके सॉल्यूशन बहुत सिंपल हैं। यदि हम इंडियन नीड को कम्युनिटी ड्रिवन डिसेंट्रलाइज्ड वाटर मैनेजमेंट के द्वारा डील कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, तो फिर एक तरह से जो हमारा कॉमन फ्यूचर है वो सुरक्षित हो सकता है। लेकिन ये काम तभी होगा जब हम ह्यूमन और नेचर इन दोनों को इक्वल राइट देकर इक्वल रेस्पेक्ट शुरू करेंगे। इक्वल राइट एंड रेस्पेक्ट बोथ नेचर एंड ह्यूमन काइंड। उससे उसका ये परिणाम होगा कि हम दुनिया को फिर से बेहतर बना सकेंगे। नेक्स्ट, यदि आज हिंदुस्तान को देखें तो 17 स्टेट, 365 डिस्ट्रिक्ट फेसिंग वाटर स्केर्सिटी एंड ड्राउट, एंड 190 डिस्ट्रिक्ट फेसिंग फ्लड। सो मैं कह सकता हूं कि पूरा भारत कुछ ना कुछ ड्राउट एंड फ्लड को फेस कर रहा है पार्टली। मैंने जो डिस्ट्रिक्ट दिए हैं वो कंप्लीटली पूरे डिस्ट्रिक्ट प्रभावित नहीं है, पार्टली डिस्ट्रिक्ट प्रभावित है। नेक्स्ट,
ये प्रभावित होने का कारण ये है कि इंडिया का जो आरबीआई है, जो रियल रिजर्व बैंक है, वो है अंडरग्राउंड वाटर रिजर्व बैंक, और वो हमने एक्सप्लॉइट कर लिया है, एक्सट्रीमली हाई एक्सप्लॉइट। 72% एरिया हमारा ओवरड्राफ्ट है। ये जो भारत की सिचुएशन है पानी के बारे में, ये बहुत संकटप्रद है। इस परिस्थिति के कारण अब लोग गांव छोड़ के शहरों की तरफ और शहरों से गांवों की तरफ, ये जो फोर्स्ड माइग्रेशन है, इसको कहते हैं लाचारी, बेकारी और बीमारी का प्लान, ये बहुत बढ़ गया है। नेक्स्ट, इसका बढ़ने का बड़ा कारण ये है कि अब हमारी साइंस और हमारी इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में सामंजस्य नहीं है। जो इंजीनियर हैं वो अपनी इंजीनियरिंग से डैम डिजाइन करते हैं, और जो हमारा साइंटिस्ट है, जियो हाइड्रो साइंटिस्ट है, वो अपनी साइंस बच्चों को पढ़ाते रहते हैं, और बच्चे भी फिर जब प्रोजेक्ट में लगते हैं तो फिर उस सबको अप्लाई कर नहीं पाते। मैं इसलिए अप्लाई कर पाया अपने जीवन में क्योंकि मेरा टीचर इलिटरेट फार्मर था, अनपढ़ किसान था। तो उसने कहा कि हमारे यहाँ सूरज चोरी करता है पानी की, सूरज की चोरी रोकनी है। उसने ये नहीं कहा कि मुझे पानी चाहिए, उसने कहा सूरज की चोरी रोकनी है। तो मैंने कहा सूरज की चोरी कैसे रोकेंगे? उसने कहा ये जो बारिश का पानी है उसको पकड़ के अंडरग्राउंड एक्यूफर में रख दो। तो एक्यूफर के फ्रैक्चर ये हमारे दिख रहे हैं ना आपको। मैं बहुत सिंप्लीफाइड जियोलॉजिकल सेक्शन दिखा रहा हूं कि मोटे तौर पर इस तरह के हमारे अंडरग्राउंड फ्रैक्चर्स होते हैं, और ये जो फ्रैक्चर्स हैं इन्हीं से पानी जाता है और ये फिर एक्यूफर को रिचार्ज करते हैं। नेक्स्ट, एक नदी में जो ग्राउंड वाटर की कंडीशन की टाइपोलॉजी होती है वो 6 प्रकार की होती है, और मोटे तौर पर जो एक्यूफर हैं उनके 2 तरह के करेक्टर होते हैं। कहीं कन्फाइंड वर्टिकल फ्रैक्चर होते हैं तो कहीं हॉरिजॉन्टल फ्रैक्चर होते हैं, बट वो जो सॉइल और कंडीशन की टाइपोलॉजी है वो इस तरह की होती है। तो जहाँ थिंक एल्यूविनियम होता है 10 मिलीमीटर तक, वो पानी की यील्ड के लिए बहुत अच्छा होता है, वेरी गुड। और जहाँ ये नहीं होता वहाँ पानी कम होता है। तो पानी को समझने के लिए मोटे तौर पर ये समझना होगा कि जहाँ वर्टिकल फ्रैक्चर्स हैं और एल्यूमिनियम है वहाँ पानी मिल जाता है, अन्य जगह पर पानी नहीं मिलता जमीन में। नेक्स्ट, ये सारा काम हमने अपने गांव के युवाओं को, इलिटरेट यूथ को ट्रेनिंग देके कराया। उनको सब रिसोर्स मैपिंग और वाटर की ऑडिटिंग, बजटिंग, वो सब उनको करनी सिखाई, और उन्होंने ही ये सारे काम, साइट सिलेक्शन, साइट का एग्जीक्यूशन सब किए। नेक्स्ट, देखिए जहाँ स्टीप स्लोप होते हैं वहाँ हम कॉन्वेक्स डिजाइन की स्ट्रक्चर बनाते हैं, और जहाँ नेचुरल डिप्रेशन होता है वहाँ कॉनकेव स्ट्रक्चर बनाते हैं, और जहाँ जेंटल स्लोप्स होते हैं वहाँ हम सीधी स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये जो इंजीनियरिंग हमने काम मिली वो एक्सप्लॉइटेशन करने वाली इंजीनियरिंग नहीं थी, वो नेचर का नरिशमेंट करने वाली इंजीनियरिंग थी। हमने साइट के सिलेक्शन अपनी एग्रो इकोलॉजिकल क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी का रेस्पेक्ट करके किया, और कम से कम छोटी से छोटी स्ट्रक्चर में ठीक से ज्यादा पानी रुक जाए वैसी कोशिश हमने की। नेक्स्ट, हमने कुल 11,800 वाटर बॉडीज बनाई, जिनके कारण 2.5 लाख कुएं रिचार्ज हुए, और
ये 17 लाख लोगों को पीने का पानी, खेती का पानी और उनकी गाय भैंस को पानी उपलब्ध करा सके। नेक्स्ट। जब हमने काम शुरू किया था तब सब नदियां सूख गई थी, मर गई थी और गांव खाली हो गए थे, डिस्प्लेस हो गए थे। हमने केवल उस जमाने में जब हमने काम शुरू किया था तब उतनी अच्छी बारिश भी इस इलाके में नहीं होती थी। सब एक तरह से रेन सेड ओरिजिन था, लेकिन हमारे काम के बाद अच्छी बारिश होने लगी। नेक्स्ट। यू कैन सी द इम्पैक्ट। पहले ये जो पहाड़ियां थी ये बिल्कुल नंगी और वीरान थी और हमारे गांव की औरत और आदमी शहर जाते थे गांव छोड़कर। अभी हमारी पहाड़ियां हरी भरी हो गई और जो नदी की जमीन है उसमें सारी जमीन में पैदा होने लगी सब्जियां, खेती, सब अनाज सब पैदा होता है। उसका परिणाम है कि एक तरह से हमारे इलाके में पीस एंड प्रॉस्पेरिटी दोनों आई। नेक्स्ट। वो जो पिछली स्लाइड थी वो कॉन्ट्रैक्ट था ऊपर का, जहां से नदी शुरू होती है। ये कॉन्ट्रैक्ट है नदी के बीच का, आप देख सकते हैं नीचे का। वो जो ऊपर का राउंड है, रेड राउंड, उसमें एक छोटा सा पेड़ है। अब वो पेड़ बड़ा हो गया है और ये जो नदी सूखी रहती थी वो पेरेनियल होकर फ्लो करने लगी है, क्योंकि वाटर एक्यूमुलेट होकर वाटर लेवल ऊपर आया और वो ऊपर आके स्प्रिंग्स के रूप में मिलकर नदियों को रिजुनेट कर सका। नेक्स्ट। 2015 में जब हमें ये वाटर प्राइज मिल रहा था, उस वक्त हमारी सरकार ने हमारे काम का एक इम्पैक्ट नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर हैदराबाद में किया और उसने बताया कि 1994 तक और 2020 मार्च 2014 को जो हमारा पूरा डिफरेंस आया हरियाली का सेम डेट में, वो इन्होंने पूरे इलाके का हमारा जियो हाइड्रो साइंस का अध्ययन करने के बाद कहा, इमेंस इंक्रीज इन वेजिटेशन इज क्लियरली विजिबल इन द रीजन। इस इलाके में कुछ रिसर्च करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, ये विजुअल इम्पैक्ट दिख रहा है जो हरियाली बढ़ी है। ये जो रेड है ये हरियाली का प्रतीक है और पानी तो फ्लो करने लगा। ये जो नेशनल रिमोट सेंसिंग की स्लाइड्स है। नेक्स्ट। दोस्तों, यदि आप अपने भारत को स्वावलंबी बनाना चाहते हैं, आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, तो पहले हमारे गांव को स्वावलंबी बनाना होगा, गांव को सस्टेनेबल बनाना होगा, गांव की इकोलॉजी को ठीक करना होगा। यदि हमारे गांव ठीक होंगे, हरे भरे होंगे, तो ये देश अपने आप स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनेगा। गांवों की आत्मनिर्भरता के बिना ये देश आत्मनिर्भर नहीं बन सकता, सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो सकता। ये आत्मनिर्भरता स्लोगन से नहीं आती है, आत्मनिर्भरता काम से आती है। जब समाज अपने को स्वावलंबी बनाने के लिए स्वराज्य, ग्राम स्वराज्य के रास्ते पे आता है, तब स्वावलंबन आता है। दोस्तों, हमने पानी के काम के साथ साथ जो सबसे सस्टेनेबल काम था वो ये, हर घर में बने गोबर की खाद, हर घर रखे अपना बीज, हर अमावस्या को हो ग्राम सभा, ग्राम सभा तय करे कि गांव का उज्जवल भविष्य कैसे बनेगा, तो उसका वो प्लानिंग करें और उसी में से हम आगे जा सके। ये काम गांव से शुरू होकर रिवर बेसिन के लेवल पर बना। पहले हमने ग्राम सभाओं में काम किया, फिर हमने रिवर पार्लियामेंट बनाई और रिवर पार्लियामेंट ने एक तरह से हमारे इस पूरे काम को आगे लेके गया। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, मुझे लगता है टाइम पूरा हो गया शायद। प्रेजेंटेशन
Is my presentation not visible? Is my screen not visible? नो Okay, just टाइम है ना अभी मेरे लिए? प्रिंसिपल साहब समय है? हाँ बिल्कुल है। बहुत दिलचस्प आप वार्तालाप कर रहे हैं और हम चाहेंगे कि इसके बारे में थोड़ा सा और बताएं। बहुत मैंने बहुत ध्यान से सुना है आपकी बात को, तो आप जरूर बोलें। आपको अगर कहना है जरूर बताएं, क्योंकि यही चीजें जानने के लिए, यही ज्ञान जो है हमें जरूरत है, हमारी आगे की पीढ़ियों को भी जरूरत है, ताकि यही नहीं सोच के बैठे रहें कि जो चीज हमारे पास है वो अनंत काल तक हमारे पास रहेगी। तो ये जो सनातन वाली बात आपने की, द एवर रिन्यूएबल सस्टेनेबल kinds of energies, I really appreciate your vision in that. कि जिस तरह से जोड़ा है, तो मैं चाहूंगी कि अगर आप चाहें, अगर आपके पास जो कुछ कहना है अभी, मेरे ख्याल से अभी Naveen, correct me, Naveen? Continue. I can continue. We have time till 4:30 in fact, so sir can take all his time. I think some of his slides are also left. ओके, तो मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि यदि आप इस देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो फिर गांव से काम शुरू करना पड़ेगा, और गांव को एक यूनिट ग्राम सभा से लेके फिर पूरे रिवर बेसिन को लेना पड़ेगा, जैसे यमुना है, गंगा है, उस सब को रिजुनेट करने के लिए जो हमारी ओल्ड स्ट्रक्चर्स हैं उनको ठीक करना पड़ेगा, और जो हमारी नई स्ट्रक्चर्स हैं उनको वहां की इकोलॉजी को ध्यान में रख के करना पड़ेगा। यदि हम बड़े डैम बनाएंगे तो वो सस्टेनेबल नहीं है। हमें छोटे छोटे डैम बनाकर अपनी जरूरतों को सस्टेनेबली, सनातनी तौर पर ठीक रखना होगा, और ये काम तभी होगा जब हम अपने भगवान को जानेंगे। हम अपनी भूमि को, अपने स्पेस को, गगन को, अपनी मिट्टी को, अपने हवा को, अपने पानी को, इन सब को जान के रेस्पेक्टफुली इनको ठीक रखने की कोशिश करेंगे तो फिर हम आगे बढ़ सकेंगे। आप सब जानते हैं कि भारत कभी दुनिया का गुरु था। इंडिया इज ए ग्लोबल टीचर बिफोर, और वो गुरु था। हमारे मानवीय और प्राकृतिक संबंध इतने अच्छे थे कि दुनिया में ऐसे अच्छे संबंध मानवता और प्रकृति के किसी भी देश के नहीं थे, किसी भी सभ्यता के नहीं थे। सबसे अच्छे संबंधों वाला भारत, इसीलिए भारत को दुनिया का गुरु कहा जाता था। हम दोबारा दुनिया के गुरु बन सकते हैं। कैसे? नेक्स्ट। हमें ये जो मॉडर्न ग्लोबल प्रॉब्लम है, ग्लोबल वार्मिंग की और क्लाइमेट चेंज की, उसको ठीक करने के लिए लिंकिंग क्रॉप पैटर्न विद रेन पैटर्न इन इंडिया, भारत के फसल चक्र को वर्षा चक्र के साथ जोड़ना पड़ेगा। यदि ये फसल चक्र वर्षा चक्र के साथ नहीं जुड़ेगा तो भारत बेपानी हो जाएगा, और भारत यदि बेपानी होगा तो भारत के पास आगे जाने के लिए बहुत मुश्किलें होंगी। भारत को बेपानी होने से रोक सकते हैं इरोजन और सिल्टिंग को रोकना, और ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करके स्किल डेवलपमेंट इन एफिशिएंट यूज ऑफ वाटर। हम अपने नौजवानों की, युवाओं की ये जो दक्षता है, वह जल उपयोग की दक्षता, उसको बढ़ाने का काम करें। और एक जैसे आपका कॉलेज है, वो एक वाटर लिटरेसी ड्राइव शुरू करे, तो उसमें से हम सस्टेनेबिलिटी के रास्ते ढूंढ सकते हैं, क्योंकि हमारे नेचर की सस्टेनेबिलिटी वाटर पर डिपेंड करती है। और यदि हम ठीक से भारत के नेचुरल रिसोर्स को मैनेज करना चाहते हैं तो हमें सस्टेनेबल वाटरशेड मैनेजमेंट की अप्रोच पर जाना होगा। उससे ही हम सबकी जरूरत भी पूरी होगी और नेचर में एक सस्टेनेबल ग्रोथ शुरू होगी, और वो जो सस्टेनेबल ग्रोथ होगी वो फॉर हैप्पीनेस एंड पीस, हम सबके आनंद के लिए और हम सबकी शांति के लिए होगी। नेक्स्ट।
देखिए, ये मेरे टीचर हैं। ये जब पानी नहीं था तब साल में 2 बार नहाते थे, होली और दिवाली के दिन। अभी साल में अब ये दिन में 2 बार नहाते हैं, सुबह भी नहाते हैं और शाम को भी नहाते हैं, क्योंकि तब पानी नहीं था। तो होली दिवाली पर पूजा करना होता है इन्हें, तो पूजा बिना स्नान के नहीं हो सकती। तो तब ये होली और दिवाली पर स्नान करके पूजा करते थे। अब तो रोज पूजा करते हैं, रोज स्नान करते हैं। तो ये बड़ा परिवर्तन आया हमारे समाज में पानी के साथ। जब नदियां बहने लगती हैं तो समाज के फ्लो प्रॉस्परस हो जाते हैं, और वो जो फ्लो होते हैं वो ही सस्टेनेबल फ्लो होते हैं। नेक्स्ट। मैंने जैसा ये पिछली स्लाइड में मैं दिखा रहा था कि गांव की औरतें पहले 9-10 किलोमीटर दूर पानी लेने जाती थी। अब उन्होंने पानी का खुद ने इतना अच्छा इंतजाम कर लिया है कि 5 मिनट में 2 मटकी पानी आ जाता है। पहले 1 मटकी पानी लाने में उनको 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे तक लगते थे। तो जो वुमेन ड्रेजरी थी वो पानी के साथ थी। इंडिया में जब मैन वीमेन के बीच काम का बंटवारा हुआ होगा तो पानी औरत ने अपनी स्वेच्छा से अपने हाथ में लिया, क्योंकि वाटर जो है वो लाइफ के लिए इतना इंपॉर्टेंट है। तो माँ ने पानी अपनी अपनी इच्छा से, अपने पानी पिलाने का काम अपनी स्वेच्छा से लिया। लेकिन उसी के कारण हमारे राजस्थान में महिलाओं का कष्ट बढ़ा। द वीमेन ड्रेजरी, आप कल्पना नहीं कर सकती कि कितनी दूर तक उनको पानी लेने जाना पड़ता था। जब उनको पानी लेने जाना पड़ता था तब उनका एक भी बच्चा स्कूल नहीं जा सकता था, और एक भी लड़की पढ़ती नहीं थी। आज हमारी हर बच्ची स्कूल में पढ़ती है, आज हमारा हर बच्चा स्कूल में पढ़ता है। क्यों? क्योंकि माँ को घर में पानी मिल गया। माँ की लाइफ में थोड़ी ड्रेजरी की जगह लग्जरी है, थोड़ा आराम मिल गया, थोड़ा समय मिल गया। तो ये जो एक बड़ा परिवर्तन हुआ, उससे हमारी जो वुमेन है वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में आगे आ गई, और एक तरह से कम्युनिटी में उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल हमारी कम्युनिटी को दोबारा से खड़ा करने में, दोबारा से बनाने में। भारत में नीर, नारी और नदी, इन तीनों का सम्मान था। भारत नारी के सम्मान में बड़े समय तक रहा। अभी छोड़ दीजिए थोड़े दिन की बातों को, अब क्या हो रहा है। लेकिन पहले भारत में नीर का, जल का, नारी का, वुमेन और नेचर दोनों एक ही है। नारी शब्द जो है वो केवल वुमेन के लिए नहीं है, वो नेचर के लिए भी है। नीर, नारी, जितनी भी मां होती हैं, स्त्री, धरती, प्रकृति, ये सब हमारे यहां नारी कहलाती हैं। और नदी, नदी जो है वो फ्लो है, फ्लो ऑफ लाइफ। हमारी लाइफ को जो फ्लो मिलते हैं वो नदियों से मिलते हैं। हमारी गंगा दुनिया की सबसे बड़ी फ्लो देने वाली नदी थी। उसके जल में 17 तरह के रोगाणुओं को नष्ट करने की शक्ति थी। जो हमारी माँ गंगा जब तक अविरल बहती थी तब तक दुनिया में उसके मुकाबले कहीं भी मानव के स्वास्थ्य के लिए उतने अच्छे जल की कोई जगह नहीं थी। इसलिए दुनिया की ये पवित्र गंगा आज हमने मैला ढोने वाली माँ बना दी है। जो दुनिया की माँ थी, पवित्र जल को प्रवाहित करने वाली, फ्लो देने वाली, वो माँ अब मैला ढोने वाली मालगाड़ी बन गई है। तो ये जो परिवर्तन है ये सस्टेनेबल नहीं है। सस्टेनेबल परिवर्तन वो होता है कि जो जैसी हमारी गंगा पहले बहती थी वैसी ही गंगा बहे, नेचुरल तरीके से बहे, अविरल और निर्मल होकर बहे, तो फिर वो सस्टेनेबल होती है। नेक्स्ट। हमने खेती और जंगल दोनों को साथ साथ बढ़ाया। ये ग्रीन रिवॉल्यूशन से अलग तरह की रिवॉल्यूशन है। ग्रीन रिवॉल्यूशन में जंगल काटे गए, तब खेती की गई। हमने जंगलों के साथ खेती बढ़ाई, पानी के साथ और जंगल के साथ, दोनों को साथ साथ लेके चले। इसलिए हमारे इलाके में हरियाली बहुत बढ़ी। नेक्स्ट। दोस्तों, उसी का
परिणाम जो हमने किया उसका एक साइंटिफिक इम्पैक्ट अब आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। देखो ये जो सूरज है ये हमें रेड हीट देता है, अल्ट्राहीट देता है। वो रेड हीट जब समुद्र के ऊपर पड़ती है तो समुद्र के खारे पानी को डिसैलिनेट करके मीठा कर देती है और वो गैस के रूप में H2O बन के H हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1 H2O, ये बादल बन के, तो जब ये रेड हीट समुद्र पे पड़के ब्लू हीट में चेंज होती है उसको बादल कहते हैं। ये जो ब्लू हीट है ये हमेशा ग्रीन हीट की तरफ माइग्रेट करती है, मूव करती है, क्योंकि वहां प्रेशर कम होता है। नेक्स्ट नेक्स्ट, यस, ये जो बादल है, ये जो ब्लू हीट है, जैसे ही ग्रीन हीट के ऊपर आती है तो दोनों क्लाउड्स, ब्लू हीट और जो ऑक्सीजन हरियाली से जंगल से निकलती है वो भी पानी बन जाते हैं। उसको हम रेन्स कहते हैं, वर्षा कहते हैं। जैसे ही वर्षा बढ़ती है तो हमारे इलाके में ये जो रेमसेडो रीजन था, माइनिंग और उसके कारण जो नंगा हो गया था वहां टेम्परेचर का जो प्रेशर है वो जो बढ़ता था, उसके कारण जब गर्मी नीचे होती है तो बादल ऊपर उठ जाते हैं और हवा के दबाव में आगे निकल जाते हैं। तो हमारे यहाँ बादल आते तो थे पर बरसते नहीं थे, इसलिए हमारा पूरा इलाका रेनशेडो डिक्लेयर हो गया था। उस जमाने में मेरे गांव की औरतें जो गीत गाती थी वो जरा सुन लीजिए। बादल तो आते हैं हर साल मेरे गांव में, पर बरसते नहीं है वो, रूठ जाते हैं वो, मालूम नहीं कहाँ चले जाते हैं वो। जब से रूठना शुरू किया बादलों ने, मेरा बेटा और मेरे बेटे की बहू भी रूठ कर चले गए हैं मेरे गांव से। मेरा खेत सूखा है, मेरे कुएं सूखे हैं, मेरे जीवन की हरियाली मिट गई है, मुझे मालूम नहीं मेरा बुढ़ापा कैसे गुजरेगा। ऐसे दुख के गीत 1980 के दशक में हमारे गांव-गांव में सुनने को मिलते थे। तब हमने क्या किया? नेक्स्ट नेक्स्ट, हमने अपने इलाके में 11,800 वाटर बॉडीज बनाई। बारिश तो नहीं हुई क्योंकि वाटर बॉडी बनने से बारिश नहीं होती। तो फिर हमारे गांव के लोगों आए वापस और उन्होंने क्या किया? नेक्स्ट, जो जंगल के पश्चिम के जितने भी पहाड़ों के जंगलों का पानी था वो सब अपनी वाटर बॉडीज में डाइवर्ट कर दिया और इनकी जो वाटर बॉडीज थी वो पेरेनियल हो गई। पेरेनियल हुई तो क्या हुआ? नेक्स्ट, पेरेनियल होते के साथ माइक्रो क्लाउड फॉर्मेशन शुरू हुआ और इस माइक्रो क्लाउड फॉर्मेशन ने अरेबियन सी से आने वाले मैक्रो क्लाउड्स को अपनी तरफ बुलाना शुरू किया। नेक्स्ट, दोनों मिल गए और दोनों मिलकर फिर हमारे इलाके में अच्छी बारिश होने लगी। अब हमारे इलाके में बहुत अच्छी बारिश होती है। नेक्स्ट, ये जो परिवर्तन है, ये जो सस्टेनेबिलिटी है, ये जो प्रोडक्शन है, ऐसा प्रोडक्शन जिसका कोई अंत नहीं होता, वो यहाँ शुरू हुआ। रेड हीट गायब हो गई, अब आपको कहीं रेड हीट नहीं दिखेगी। अब आपको ब्लू हीट, ग्रीन हीट और येलो हीट दिखेगी। येलो हीट जो होती है वो वाटर और सॉइल की एक तरह से उत्पादक, ये उसका प्रजनन अंग होते हैं। ये दोनों, उनकी सॉइल और मिट्टी जब मिलती है तब उसके अंदर के बीज अंकुरित होकर हरियाली, पेड़ पौधे बनते हैं और उससे उत्पादन होता है। वो कभी भी
उसका कभी अंत नहीं होता, वो नया उत्पादन है। इसीलिए वो भारत में खेती को सर्वोत्तम माना जाता था। आज खेती व्यापार की वस्तु बन गई है। पहले खेती संस्कृति थी, तो जब तक भारत की संस्कृति खेती थी तब तक भारत गुरु बना रहा। जब से भारत की खेती हमारी संस्कृति नहीं बाजारू हो गई है, तब से ये मुश्किलें आनी शुरू हुई हैं। लास्ट स्लाइड, नेक्स्ट। आप देखेंगे कि हमारा जो टेम्परेचर है वो 2 डिग्री से ज़्यादा नीचे चला गया, और जो बादल हैं वो धरती के पास आ गए, और अंडरग्राउंड एक्यूफर रिचार्ज होने के कारण अच्छी खेती होने लगी। और पहले 2% हरियाली थी, अब 48% हरियाली बढ़ गई खेती के कारण। तो एटमॉस्फेयर का जो कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसका सिक्वेस्ट्रेशन बढ़ा और O2 का लेवल बढ़ा। तो एक तरह से हमारे इलाके में जो धरती का बुखार था वो उतर गया। धरती का बुखार ठीक वैसे ही उतरता है जैसे आदमी का उतरता है। आदमी को जब बुखार चढ़ता है तो वो पैरासीटामोल खाता है और पानी की पट्टी सिर पर रखता है और थोड़ा आराम करता है। ठीक वैसे ही धरती का बुखार ठीक करना पड़ता है। जब पानी मिट्टी में जाता है तो हरियाली आती है, और हरियाली बढ़ने से एटमॉस्फेयर के कार्बन डाइऑक्साइड का सिक्वेस्ट्रेशन होता है और उसका टेम्परेचर थोड़ा नीचे आता है। फिर उसको रेस्ट दे दो, उसमें माइनिंग वगैरह ना करो, तो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट और डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी, सस्टेनेबल इकोनॉमी, सस्टेनेबल नेचुरल रिसोर्स, सस्टेनेबल इकोलॉजी, इन सब की गति बढ़ जाती है। और जब ये एक क्रम में आ जाते हैं तब ये सनातन बन जाते हैं। इसलिए हमें आज सनातन विकास चाहिए। आज हमें ये जो आधुनिक विकास है जिसकी ओपनिंग, जिसका एंट्री पॉइंट डिस्प्लेसमेंट से शुरू होता है और फिर डिस्ट्रक्शन होता है और फाइनली ड्राउट और फ्लड जैसे डिजास्टर ज़्यादा होते हैं, उसके बजाय हमें सनातन विकास चाहिए। इस सनातन विकास में कभी किसी का विनाश नहीं होता, कभी किसी की बुद्धि का विस्थापन नहीं होता, कभी मिट्टी या किसी का विस्थापन नहीं होता, विकृति नहीं आती। इसलिए हम जिसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, हिंदी में उसको सनातन विकास कहना ज़्यादा अच्छा होगा। और जिस तरह से हमने काम किया राजस्थान में 10,600 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन पर जहाँ लोग डिस्प्लेस हो गए थे, जहाँ धरती को बुखार चढ़ गया था, अब वहाँ धरती स्वस्थ हो गई है और अच्छी बारिश होती है, अच्छी पैदावार होती है, खूब हरियाली है। इसलिए मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारी शिक्षा में अब हमारे कॉलेजेस को प्रकृति के पोषण की शिक्षा देनी चाहिए, और वो शिक्षा में जो हमारी सनातन शिक्षा हो तो वो ज़्यादा होगा, क्योंकि सनातन शिक्षा में लाभ से ज़्यादा शुभ की चिंता होती है, और जो शुभ है वो सुरक्षा प्रदान करता है। जब से हम इकोनॉमिक प्रॉफिट के कंपटीशन में घुसे हैं, तब से हमारी फूड सुरक्षा, हमारी हेल्थ सुरक्षा, हमारी सुरक्षाएं कम हो गई हैं। पुराने ज़माने में सुरक्षा ज़्यादा ध्यान रहता था और लाभ का कम ध्यान रहता था। इसलिए लाभ शुभ का दुश्मन हो जाता है, जबकि पुराने ज़माने में लाभ और शुभ दोनों साथ साथ चलते थे। मित्रों, आखिर में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि यदि आप सस्टेनेबिलिटी की चिंता कर रहे हैं तो जिस तरह से हमारे इलाके में लोगों ने अपना सनातन विकास किया, उसके कारण वो काम एक गांव से शुरू हुआ था, लेकिन पूरी दुनिया में एक नया पॉलिसी परिवर्तन किया। नेक्स्ट, लास्ट। वाटर इज क्लाइमेट एंड क्लाइमेट इज वाटर। 2015 से पहले क्लाइमेट चेंज में वाटर की चर्चा नहीं थी।
केवल ओजोन लेयर, गैसेज, ये वो सब चर्चा करते थे। हमने 2015 में पेरिस में वाटर इज क्लाइमेट एंड क्लाइमेट इज वाटर के स्लोगन के साथ आंदोलन किया, सत्याग्रह किया। उस वक्त वहां COP21 COP21 था। COP21 में पूरी दुनिया के प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट वगैरह इकट्ठे थे और उसमें उन्हें आगे की नीति रीति तय करनी थी। वो जो पेरिस एग्रीमेंट है COP21 का, उसमें ये पहली बार वाटर इज क्लाइमेट एंड क्लाइमेट इज वाटर ये स्वीकार किया गया। और एक तरह से हमारे छोटे से प्रयोग को, छोटी सी सफलता को वहां पर एक पूरी दुनिया की नीति में परिवर्तन लाने में सफलता मिली। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद डॉक्टर साहब। वाह, जय हिंद। क्या बात है। एक ये जो इतनी मार्मिक एक कहानी आपने हमें सुनाई है, और मैं कई चीजों पर, कई बिंदुओं पर दो चार बातें कहना चाहूंगी, आपकी इजाजत हो तो। जाहिर है जरूर जरूर। आपने इतने सरल तरीके से सारा कुछ समझाया, लेकिन मैं छात्र छात्राओं का ध्यान, नौजवानों का ध्यान खींचना चाहती हूँ फिर भी उनमें कुछ बिंदुओं पर, क्योंकि उससे मुझे लगा, जिससे जो मुझे छू गई जो बातें, वो इसलिए मैं कहना चाहूंगी क्योंकि अगर हम उस तरह से चिंतन करें इस पूरे मसले पर, तो शायद हम समझ सके कि हमारा रिश्ता क्या है प्रकृति के साथ, हमारे अपने वातावरण के साथ क्या रिश्ता है, उस पर थोड़ा सा जो है थोड़ी और समझ बनती है। मैं शुरू करना चाहूंगी आपके गाने से। I want to establish how that song which Dr. Rajendra Singh told us that गांव की औरतें ये गाने गाती थी। By the way, डॉक्टर साहब, मैं 1988 में शायद राजस्थान का दौरा किया। 7 साल का सूखा था उन दिनों, 7 साल का सूखा पड़ गया था, और जैसे ही हम निकले 88 में खूब बरसा उस बरस। तो हर एक सूखे मंदिर में प्रार्थना तो मैंने यही की कि ये सूखे से निस्तार हो, लेकिन जो भी है, जाहिर है कि आप लोगों की बहुत बहुत इसमें मेहनत लगी है उसको राजस्थान को सूखे से निकालने के लिए। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी, उस गाने में there is a connection which you must, I don't know if you heard the words of that song. It was, I know I'm a person of literature, I do pay special attention to narratives. So there was a connection between nature and its behavior and the structure of families. And the woman's son and daughter-in-law have left. It's a story of dislocation because of the fact of there not being any water. I think if we understand this connection, which affects our kinship networks, then I can come to the next point, which is the essential kinship network that is established through Dr. Rajendra Singh's talk. He is talking about लेन-देन के संबंध, कुटुंब के संबंध, प्रकृति के साथ हमारे ये संबंध है, लेन-देन के संबंध है। और वो जो है लेन-देन का संबंध, हम अपने सामाजिक तौर पे भी, सामाजिक जिंदगी में भी उसको निभाते जरूर हैं, लेकिन किसी तरह से हम लोगों ने शायद कुटुंब का संबंध और लेन देन का संबंध जो है प्रकृति के साथ नहीं निभाया है, और जिसके कारण आज हमें इस भीषण दुर्दशा का सामना करना पड़ रहा है हमारे आने वाले कल की तरफ देखकर। तो मैं ये I want to connect the personal family relationship with the social and the environmental ecological network. Today we understand ecology to be a much larger discourse than just the greenery. Everything has an ecology. It has become a part of our vocabulary. So this is the second thing I wanted to comment on. I mean, it's a second point I wanted to pick up. And the third thing is, Dr. Rajendra Singh
the ease with which you have woven your social narrative with scientific principles. And that is very evident in your presentations. So, मैं बहुत it's like, you know, छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन मैं आपको कॉम्प्लीमेंट करना चाहती हूँ, मैं आपको मुबारक देना चाहती हूँ कि आपने इतने सरल तरीके से एक वैज्ञानिक जो प्रिंसिपल्स है, जो सिद्धांत है, इस पूरे आपके रेड हीट, ग्रीन हीट, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने उस चीज को जो है उभारा है कि समझने में मेरे ख्याल से किसी को कोई कसर नहीं बाकी रही. और instead of going through abstractions, if you go from the concrete, that is what surrounds you, to the principles that are the governing principles of this whole idea of sustainability or a sustainable environment, sustainable life, then I think that these three things, these are my takeaways actually. This is amazing. और इस तरह से, जिस तरह से आपने बताया कि आपकी छोटी सी ये कहानी पूरी दुनिया को मुतासर करी, मुझे कोई इसमें हैरानगी नहीं है, करनी चाहिए थी और की भी. तो मुझे व्यक्तिगत रूप से इसमें खुशी है, लेकिन जाहिर है कि मुझसे कई बड़े एजेंसीज ने आपके हुनर को पहचाना और आपके काम को पहचाना. हम तो बहुत ही, we are in all humility, we accept your presence here, sir, and your knowledge that you have given in all humility. Thank you very much. I would hand over the mic now to Neha. I think who is conducting this meeting. And thank you प्राचार्य जी, बहुत अच्छा लगा आपको सुन के, और आपके इमोशंस और आपका भाव और आपका लगाव बहुत गहरा है. मैं समझता हूँ ये भाव आपके बच्चों को भी और हम सबको समझ में आया. सर, वी वुड लाइक टू रिक्वेस्ट सर, अभी हम लोग एक क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे. सर, आई होप, थैंक यू सो मच. आई ऑल्सो वॉन्ट टू थैंक यू ऑल on behalf of all the participants as well. बहुत ही thought provoking lecture था. And तो जो हमारे students हैं, the participants, वो आपसे कुछ question करना चाहेंगे. Sir, can we have you for some time? 3 minutes? So 3 questions or 3 minutes? Sir, you're not audible. हम सुन नहीं पा रहे हैं आपको सर. पर वो अगर ईयरफोन यूज करेंगे सर. मैं इजाजत लूंगी इस क्वेश्चन आंसर सेशन के पहले, और कभी आपसे मुलाकात करने का भी मौका मिलेगा. You can ask 3 questions. 3 questions, Neha. Participants, if you want, you can ask. Sir, they are framing the questions. Before that, मैं आपसे एक question पूछना चाहती हूँ. जैसे कि आप राजस्थान में आपने बहुत काम किया है वाटर कंजर्वेशन पे, और हमने काफी कुछ सीखा. सर, क्योंकि हम लोग दिल्ली में एस्टैब्लिश्ड हैं और अभी रिसेंट ईयर्स में बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं, जैसे कि केप टाउन ने 0 डे देखा, वैसे ही जल्दी दिल्ली भी 0 डे देखने जा रहा है. सो मैं बस आपसे ये पूछना चाहती हूँ सर, बिकॉज यू आर वर्किंग इन दिस फील्ड काफी समय से, तो आप हमें कुछ आप कुछ बता सकते हैं कि व्हाट स्टेप्स शुड बी टेकन बाय द गवर्नमेंट और फॉर द कंजर्वेशन, सो वी कैन स्टिल सेव आवरसेल्व्स फॉर रीचिंग द 0 डे इन दिल्ली. तो हम कुछ स्टेप्स या कुछ हमें आप बता सकें. बहुत अच्छा सवाल है नेहा. मैं इतना कहना चाहता हूँ, तुम एक कॉलेज में हो, एक कॉलेज का काम होता है सिखाना, समाज को सिखाना, राज को सिखाना, सबको सिखाने का काम होता है. इसलिए आपके कॉलेज को एक वाटर लिटरेसी ड्राइव लेनी चाहिए अपने इलाके में. जल साक्षरता. जल साक्षरता का मतलब ये कि दिल्ली का भविष्य जिस यमुना के साथ बना था, जिस यमुना ने दिल्ली को राजधानी बनाने का मौका दिया था, उसको हम दिल्ली के लोगों ने खत्म कर दिया. और अभी तो हम यमुना का ऊपर का पानी ले रहे हैं, गंगा का भी ले रहे हैं, लेकिन आने वाले समय
हमारे लिए कैसा होगा वो हम नहीं जानते। हमें बुरा वक्त ना आए उससे पहले भगवान ने जो हमें पानी दिया है, भगवान ने जो हमें जल दिया है, कम से कम उसका संरक्षण और उसको अनुशासित होकर उपयोग करना हम शुरू करें। और आपके कॉलेज के आसपास की जो 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 आवास हैं, जो हैबिटेशंस हैं, जो 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 कॉलोनीज हैं, उनमें कुछ एक विद्यार्थियों को एनएसएस और आपके कई कई प्रोग्राम आप बना सकती हैं। एक जल के लिए ही आपका कॉलेज एक समर्पण का कार्यक्रम रख सकता है। उसको एक कंटिन्यू तरीके से करने की जरूरत है। यदि आप ये करेंगी तो एक अच्छे कॉलेज का काम ही ये होता है कि जो हमारे कॉमन फ्यूचर की थ्रेड्स हैं, उन थ्रेड्स को आने से पहले अपने समाज को बताना। शिक्षक वही करता है। तो आप एक अच्छे शिक्षक की तरह और अपने विद्यार्थियों को लगाकर इस काम में लगाएंगी तो बहुत अच्छा होगा। जी सर। क्वेश्चंस, ओके सर, आपको जान के बहुत खुशी होगी, मैं बताना चाहूंगी कि हमारे कॉलेज जो है वो रिज के पास है, नॉर्दर्न रिज, और वहाँ पे वाटर लेवल बहुत अच्छा है। फिर भी जैसा कि मैडम ने कहा, प्रिंसिपल मैम ने, हमने वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स इंस्टॉल कर रखे हैं। देन ऑल्सो वी आर ट्राइंग, हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना ज्यादा से ज्यादा जल संचित कर सके या वर्षा जल संग्रहण कर सके, तो वो हम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और आप जैसे कि देखेंगे, यह कोर्स हमने जो किया, बहुत सारे स्टूडेंट्स, हम वी कीप ऑन enlightening or awareing the students about that. हमारे पास एक क्वेश्चन आया है, एक स्टूडेंट संचिता प्रकाश का, he saying sir a little elaboration on linking crop patterns with rain patterns and how to link them with modern irrigation system. उन्होंने ये बोला है कि जो क्रॉपिंग पैटर्न जो होते हैं सर, उनको मैं समझ गया, सवाल समझ गया। मैं नेहा इतना बताना चाहता हूँ कि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के कारण हमारे रेन पैटर्न चेंज हो गए हैं। पुराने जमाने में हिंदुस्तान का किसान ये जानता था कि बारिश कब होगी, कैसी होगी, किस साल में कैसी बारिश होगी। उसको वर्षा को ध्यान में रख के वो अपनी सीड सोइंग करता था। जब से ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी आई, तब से वो अब जो सोइंग करता है उसके लिए भी धरती से पानी निकाल के पलेवा करके तब बोता है। मेरा कहना ये है कि जब बारिश आती है तब तो भारत का पानी बह जाता है। अभी कितना पानी बहा इस बारिश में, हम कितना रोक पाए, कितना यूज कर पाए। यदि किसान को अपने क्रॉप पैटर्न को रेन पैटर्न के साथ, ये जो बदलता हुआ वर्षा का चक्र है, इस बदलते हुए वर्षा के चक्र के साथ वो समय को ख्याल में रख के क्रॉप डिसाइड करेगा, तो कम पानी में ज्यादा पैदावार कर सकेगा। इसलिए कम पानी खर्च करके हम कैसे ज्यादा उत्पादन कर सकते हैं, वो हमारी रिवर पार्लियामेंट ने किया। हमारी अरवरी पार्लियामेंट ने अपने इलाके में यही सबसे पहले तय किया कि हमें ये फसलें बोनी है, ये फसलें नहीं बोनी है, और कोई बोएगा तो उस पर दंड करते हैं गांव के लोग। तो हमारी सिविल सोसाइटी को अपने क्रॉप पैटर्न को रेन पैटर्न के साथ लिंक करके बोने से भारत पानीदार बना रहेगा। भारत को यदि पानीदार बना के रखना है तो क्रॉप पैटर्न का रेन पैटर्न के साथ लिंक करना जरूरी है। नेक्स्ट। आपकी आवाज नहीं सुन रहा हूँ। हेलो हेलो, हाँ अभी आ रही है। यस यस। Momita Dixit is saying, thank you so much sir for this amazing and inspirational talk. Sir, इसी question से related है. Sir, due to climate change, nowadays there is no systematic pattern of rain. Then how to connect? Yes. How can we connect it? Yes. देखो, ये क्लाइमेट चेंज होने के कारण बिल्कुल ठीक उसका सवाल है। हमारे रेन पैटर्न चेंज हो गए हैं, उनको हम कैसे अज्यूम कर सकते हैं। हमारी जो साइंस विद सेंस का मतलब होता है साइंस विद सेंस एंड साइंस विद कॉमन सेंस।
that is working only for Shubh, for better future. And that science you can use in agriculture, and you can use in climatology, and you can understand the changing pattern of rain हमारे किस तरफ मूव कर रहे हैं, किस तरफ मूव कर रहे हैं, उसका एक तरीका होता है समझने का, उसकी एक साइंस है। उस साइंस के जरिए ये सब जाना जा सकता है। एग्रीकल्चर में इसका अभी एक बहुत सीरियस मसला है। कई यूनिवर्सिटीज में इस पर मेरे कहने से ये काम शुरू किया है कई साइंटिस्ट ने। तो ये थोड़ा इनका जो सवाल है वो बहुत अच्छा है, लेकिन ये अभी थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को ठीक करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्टों को लगना पड़ेगा, लेकिन वो साइंटिस्ट ही लग सकते हैं जिनको प्रॉफिट नहीं कमाना है अपनी रिसर्च से। जो 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 इकोनॉमिक कंपटीशन में होते हैं प्रॉफिट के, वो इस तरह की रिसर्च में नहीं जाते। इसलिए इस तरह की रिसर्च में जाने के लिए हमें ऐसे साइंटिस्ट चाहिए जो साइंटिस्ट हैं जो साइंस को विद सेंस यूज करते हैं, जो साइंस को विद कॉमन सेंस यूज करते हैं। इसका मतलब है कम्युनिटी के कॉमन फ्यूचर को बेहतर बनाने की जिनको चिंता होती है, वो वैसी साइंस को उपयोग करते हैं। इसलिए इसमें कुछ अलग तरह के साइंटिस्टों की अब जरूरत होगी। लेकिन हमारे गांव के किसानों ने साइंस विद कॉमन सेंस अपना जो रेन पैटर्न है वो क्रॉप पैटर्न के साथ जोड़ लिया। जो वर्षा जैसी होती है उसी वर्षा को अपने फसलों के साथ जोड़ लिया। तो वो जो मैंने कहा ना कि साइंस विद कॉमन सेंस और साइंस विद सेंस, वो इसमें अभी लगानी पड़ेगी। बाकी तो इसमें थोड़ा समय लगेगा, ये कॉम्प्लेक्स इश्यू है। अभी इस पर किसी देश ने बड़ा काम किया नहीं है। Thank you so much, sir. I think we are done here. Thank you so much, sir. Thank you for being here with us. Yes, so we have learned a lot, और I think मेरे मन में और I think सभी जो students हैं, most of us would have got this thought, हमें भी कुछ करना चाहिए. Thank you so much. It was such a thought-provoking lecture. Thank you, Principal Ma'am, for being here with us. Our Center for Earth Studies Coordinator, Dr. Anindita Roy Saha, all the faculty members here. And thank you everyone for being here with us today. So now I would like to tell all the participants. So as you know that we have entered this Natural Resource Management and Sustainable Energy week. From today, we are starting from today. So we'll be having lectures. So the next lecture is scheduled to be on 28th. So as and when we will be having the lectures, we'll keep you updated with that. And please also keep a check on the website for all the upcoming lectures. Thank you so much, everyone. Thank you so much. I think we are done here. The participants may leave now. And if you have any query regarding anything, you can contact us and write to us. Thank you.